welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we are going to begin with Sociological School of Jurisprudence. Guys, this school is also known as Functional School of Jurisprudence, and by the end of this lecture you will be familiar with why this school is also known as Functional School of Jurisprudence. Guys, as we are talking about yet another school of jurisprudence, it means it is yet another juristic thought or an approach to the understanding of law. It is an altogether different perception of law. Guys, Sociological School of Jurisprudence emerged as a reaction to the legal theories propounded by analytical positivists on one hand and historical jurists on the other. What happened is that analytical positivists, they laid emphasis on arbitrary creation of law by the sovereign in a state, and they also completely devoid law of morality. On the other hand, historical jurists, they laid undue insistence or overemphasis on historical aspects of law, which is they concerned law with past customs, past morals, past values and traditions, which according to the jurists of sociological jurisprudence hindered or hampered the growth of law. इनकी अकॉर्डिंग वो लॉ की ग्रोथ को रोकता है जब हम ज़्यादा पास्ट पे फोकस करते हैं. So these jurists were happy with none of the two approaches to jurisprudence. That is why they chalked out their own approach to the understanding of law, जहाँ पे इन्होंने लॉ को सोसाइटी से रिलेट किया. But it is often said that historical school of jurisprudence paved way for modern sociological approach. इसका रीज़न ये है गाइस, क्योंकि जब हमने हिस्टोरिकल स्कूल के कुछ इंपॉर्टेंट एमिनेंट जूरिस्ट्स की लीगल थ्योरीज को डिस्कस किया था, नेमली सैविग्नी एंड हेनरी मेनी, इवन जॉर्ज पुचता, I've told you कि इन लोगों ने भी, इन जूरिस्ट ने भी अपनी लीगल थ्योरीज को सोसाइटी से रिलेट करके ही कॉन्सेप्ट दिया है. Although guys, historical school in its very essence is very different from sociological school, तभी अलग अलग approaches हैं to the understanding of law, but the thing is कि उन eminent jurists ने कहीं ना कहीं already law को society से relate करना शुरू कर दिया था. उसका जो climax है वो ये स्कूल लेके आया जहाँ पे जितने भी जूरिस्ट हम डिस्कस करेंगे इन्होंने भी लॉ को सोसाइटी से ही रिलेट किया. इन्होंने हेनरी मेनी और सेविग्नी की थियोरीज को इम्प्रोवाइज किया, वहाँ पे और एडिशंस करी और यहाँ तक अपना क्लाइमैक्स ले आए और सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया. सो द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज दैट इन दोनों ने ही सोसाइटी को कहीं ना कहीं लॉ को सोसाइटी से रिलेट किया, कहीं ना कहीं इन्होंने लॉ को सोसाइटी से रिलेट किया. अदरवाइज गाइज, इन essence, historical school focuses on origin and evolutionary process of law, whereby सोशियोलॉजिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे विच इज़ इंटायरली डिफरेंट, और कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी से इन्होंने लॉ को रिलेट किया है, अनलाइक एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट जिन्होंने लॉ को स्टेट से रिलेट किया था. सो गाइस, द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल रोल ऑफ लॉ एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी रादर दैन इट्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेंट्स. कहने का ये मतलब है गाइस कि जितने भी हमारे सोशल ज्यूरिस्ट्स हैं उनका ये कहना है कि लॉ एंड सोसाइटी दे सर्टनली कोएग्जिस्ट and under no circumstances whatsoever can these two have separate existence. मतलब क्या है कि सबसे पहले इन लोगों ने अपनी थियोरीज में लॉ को सोसाइटी से रिलेट किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, लॉ एंड सोसाइटी कैन नेवर हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस, दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड एंड दे को एग्जिस्ट विद ईच अदर. अब गाइस, इनका ये मानना है कि वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ लॉ एंड सोसाइटी ऑन ईच अदर. लॉ का क्या इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, वेदर गुड और बैड, और सोसाइटी का क्या आंसर होगा to the law which has been formulated. So we have got to understand the effect of both these things on each other, and they say that law is essentially a social phenomenon. उन्होंने कहा लॉ जो है वो एक सोशल फिनोमिनन है, क्योंकि लॉ को सोसाइटी पे एप्लीकेबल होना है तो वो एक सोशल फिनोमिनन है, एंड वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर वेदर गुड और बैड, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नेगेटिव रिस्पॉन्स है. और वो ये भी बोलते हैं दैट दे ट्रीट लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस, क्योंकि गाइज अब आप देखो इन्होंने, इनका ये मानना है कि अगर एक लॉ प्रोग्रेसिव होगा इसका मतलब अपने आप ये है कि वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव अपने आप होगी, क्योंकि दे को एग्जिस्ट विद ईच अदर. एट द सेम टाइम गाइज, अगर एक सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, इट इज़ डेफिनेटली एन इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट कि उस सोसाइटी का लॉ भी प्रोग्रेसिव लॉ होगा, बिकॉज गाइज दीज टू थिंग्स दे को एग्जिस्ट, दे हैव नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. सो अगर हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव है तो वहाँ का लॉ भी प्रोग्रेसिव होगा, और अगर हमारा लॉ प्रोग्रेसिव है इट इज़ एन इंडिकेशन कि वो सोसाइटी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, एंड दे हैव अ डायरेक्ट बियरिंग और इम्पैक्ट ऑन ईच अदर. उनका यही मानना है कि लॉ को हमें सोसाइटी से रिलेट करना है. लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस, एंड दैट वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी इफेक्ट ऑफ लॉ एंड सोसाइटी ऑन ईच अदर, एंड इट इज एसेंशियली अ सोशल फिनोमिनन. गाइज, इसी चीज़ को
इन ज्यूरिस्ट्स ने कहा है सोशल फंक्शन ऑफ लॉ। सोशल फंक्शन ऑफ लॉ मतलब एक लॉ का क्या सोशल फंक्शन है, उसने सोसाइटी में आके क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। सो इट इज़ ऑफन सेड गाइज, अब ये जो हम परसेप्शन रीड कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट्स की, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इन विच द लॉ इज टू बी एप्लीकेबल हैज़ टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर दैट लॉ टू सर्व अ रियली यूजफुल पर्पज। हम ये स्टडी तो कर रहे हैं कि लॉ का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है या सोसाइटी का लॉ पे क्या असर होगा, लेकिन गाइज इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि लॉ को सोसाइटी पे ही एप्लीकेबल होना है, तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं इट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। आपको ये देखना है कि जो लॉ है वो लोगों पे एप्लीकेबल होगा और लोग अल्टीमेटली सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें सोसाइटी की हर एक रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए लॉ को बनाना है। देन ओनली दैट लॉ विल रियली सर्व अ यूजफुल पर्पस। अगर लोगों की सोशल प्रॉब्लम्स कोई और हैं एंड लॉ हम किसी और चीज़ का लेके आते हैं, तो वो जो लॉ है वो थ्योरी में अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकलिटी उसकी बिल्कुल भी नहीं होगी एंड दैट लॉ विल बी डिस्कार्डेड, इट विल बी ऑफ नो यूज़ और वो लॉ होते हुए भी नहीं होगा। तो इनका यही मानना है, इनकी जो अप्रोच है उसका एसेंस या उसका बेसिस यही है कि क्योंकि लॉ सोसाइटी पे एप्लीकेबल होगा एंड लॉ एंड सोसाइटी दे कोएग्जिस्ट, क्योंकि लॉ इज ट्रीटेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस, तो हमें सबसे पहले सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को देखना है जहाँ पे उस लॉ ने अल्टीमेटली एप्लीकेबल होना है। इट हैज़ टू ऑपरेट इन द सोसाइटी इटसेल्फ। तो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखो, उनकी सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझो, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को देखो, बीट पॉलिटिकल, बीट सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको मद्देनजर रखते हुए हमें लॉ को बनाना है। और अगर ऐसा कोई लॉ हम बनाएंगे तो वो डेफिनेटली एक इंस्ट्रूमेंट होगा सोशल प्रोग्रेस का, क्योंकि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे उस लॉ को यूज़ करते हुए और तभी उस लॉ का एक यूजफुल पर्पस होगा। इनका ये परसेप्शन है एज टू व्हाट लॉ इज, एज टू व्हाट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज। उनका यही मानना है कि हमें इस चीज़ को स्टडी करना होगा कि सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी हैज़ टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बिकॉज इट इज अल्टीमेटली द सोसाइटी इन विच द लॉ हैज़ टू बी एप्लीकेबल फॉर दैट लॉ टू रियली सर्व अ यूजफुल पर्पस। आई होप गाइस थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। जो चीज़ हमने अभी तक डिस्कस करी, दिस इज द अल्टीमेट एसेंस ऑफ sociological school of jurisprudence. This is the central theme or the basic philosophy underlying sociological school of jurisprudence. इससे ज़्यादा sociological school of jurisprudence कुछ नहीं है, but let me make you this line very clear guys. फंक्शनल रोल का मतलब है वर्किंग ऑफ लॉ। सो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट कि लॉ की क्या वर्किंग है और उसका क्या इफेक्ट है हमारी सोसाइटी पे। और गाइज यहाँ पे जो लॉ है वो लॉ इन एक्शन है। इसका मतलब ये है गाइज कि वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द पास्ट और फ्यूचर ऑफ लॉ। लॉ क्या था या लॉ क्या होना चाहिए, उस चीज़ से हमारे सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट्स बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट लॉ एज इट इज़। और लॉ एज इट इज़ को उन्होंने अपनी वोकैबुलरी में कह दिया लॉ इन एक्शन, क्योंकि गाइस लॉ एज इट इज़ अ वोकैबुलरी यूज्ड बाय एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट। उन्होंने यूज़ करी थी, इन्होंने एग्जिस्टिंग या करंट लॉ को, प्रेजेंट लॉ को लॉ इन एक्शन कहा। सो वो बोलते कि वी आर ओनली कंसर्न अबाउट फंक्शनल रोल और वर्किंग ऑफ लॉ, दैट टू एग्जिस्टिंग लॉ और करंट लॉ एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी, क्या वो अच्छा है या वो बुरा है। एंड दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेंट्स ऑफ लॉ, कि लॉ में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि पॉजिटिव मोरालिटी इज नॉट एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ लॉ, हमें उसको लॉ से निकाल देना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा था कि इंटरनेशनल लॉ शुड नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसको भी ज्यूरिस्प्रूडेंस से लॉ से निकाल देना चाहिए। सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट्स ने कमेंट किया दैट वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेंट्स ऑफ लॉ, कि ये लॉ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा हमें सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को देखना है, जो सोसाइटी को चाहिए वो लॉ में होना चाहिए। दिस इज इट, ये इनकी बेसिक थ्योरी थी। एंड गाइज वन मोर पॉइंट जो बहुत ही इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा लॉ सोसाइटी पे एप्लीकेबल होगा, उनकी सारी की सारी सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारा लॉ बनेगा, देन लॉ डेफिनेटली कैन नॉट रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। इतनी बात तो आपको समझ आती है, क्योंकि अगर लॉ को सोसाइटी पे एप्लीकेबल होना है एंड फॉर दैट लॉ टू रियली सर्व अ यूजफुल पर्पस, दैट लॉ कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। क्योंकि गाइस बाकी सोशल साइंस के डिसिप्लिन्स दे हैव अ डायरेक्ट बियरिंग और इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारे हमारे सोशल साइंस डिसिप्लिन्स हैं जिनको हमें लॉ के साथ पढ़ना होगा, ताकि वो लॉ जो निकल के आए वो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सर्व करे। सो इनका यही मानना है दैट लॉ कैन नॉट बी इंसुलेटेड फ्रॉम अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स, इट कैन नॉट बी इंसुलेटेड फ्रॉम सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ,
क्योंकि लॉ को सोसाइटी पे लगना है, एप्लीकेबल होना है, तो हमें इन चीज़ों को साथ में लेते हुए ही हम चलेंगे। इट मीन्स दे फेवर्ड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लॉ। उन्होंने कहा हमें सारे डिसिप्लिन को एक साथ पढ़ना है ताकि जो हमारा लॉ है दैट शुड रियली सर्व अ यूजफुल पर्पस। जब हम लॉ को सोसाइटी से रिलेट करते हैं तो ये सारे डिसिप्लिन को हमें पढ़ना होगा। आई होप गाइज सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज क्वाइट क्लियर टू यू। Still guys, if you have any doubt pertaining to an introductory lecture, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all the doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.